Prastesh Jain is a professor of, was a professor of economics in JNU. He is a very fine economist. He is perhaps one of the best in the country, amongst the best in the country. But he's also been always interested in Indian thought. From, I know at least from 1978 onwards, I know him, and since then I've seen him reading Ayurvedic texts, even practicing Ayurveda in different ways, texts of Ganit Shastra, and perhaps he, on these issues is knows more than many of us. I'll request Prastesh Jain to make a brief presentation. I should give him much more time, but today for a brief, we'll hear in more detail some other time. Please. Thank you very much, Bajaj. Am I audible? Hindu Swaraj is a very interesting, very remarkable document in many ways. If you look at 1909, entire world is under European occupation. All non-European civilizations are under decay. Loot and plunder by Europeans have reduced all non-white societies to extremely miserable conditions. Also, the entire world is mesmerized by the absolutely brilliant discoveries in science, technology, etc. done by Europeans. And it is in this context that Gandhiji says that this civilization is not good. Just extraordinary courage. I mean, the extraordinary bravery actually to be able to say so openly. I mean, it's like going against the whole world. I mean, very remarkable. So how his idea is developed? So Bajaj and Srinivas have done a very signal service in systematically presenting the evolution of these ideas. Gandhiji himself said that Hindu Swaraj is a very severe condemnation of Western civilization, or let's say modern civilization. Now this has to be, I think Professor Clooney also, I mean, raised some questions. We look at the beginning of 20th century, and what do we see? We see absolutely brilliant achievements by the West, by the modernity in all walks of life. And here is someone who is saying that this civilization is no good. So one has to figure out actually what he means by it. Then one has to obviously ask what is meant by civilization. In what way Indian civilization is superior to Western civilization? You see, this word religion, irreligion, you see, the Hindu Swaraj, the way it is written, it's a very deceptive document, because if one just reads it, I mean, it's written in very simple language. But actually, it is deceptive because it's a very deep, something very deep that Gandhi is trying to make. Because there is not much time, I would not be able to fully elaborate, but I think it's important that one makes one tries to understand why actually this civilizational comparison is being made, and in what sense. See, first of all, it is true that Gandhiji was greatly repelled by the brutal repression that the Europeans were committing against all non-whites, the great injustices that they were actually doing.
but simply because in a particular period, in a particular context, extremely unjust, extremely brutal things are being done. Does it necessarily make the whole civilization, I mean, something which one should condemn? I think it would be a mistake to think that this comparison is only because of these things. It's something very, very deep that Gandhiji is trying to convey. And in the next 2-3 minutes, I'll try to explain what I think that Gandhiji was trying to say. See, there are very interesting and very intriguing statements in Hindu Swaraj, scattered all over. For instance, there are statements like European civilization is 9 days wonder, he says. Then he would say that this civilization is entirely geared towards bodily comforts. But even with respect to that, ultimately it would not succeed. That is again a very interesting and also very intriguing statement. So why 9 days wonder? See, what I think the central point that he actually noted was, see, it's not that Gandhiji did not know that the West also produces very fine people, very nice people, saints also. And India also produces, I mean, adharmi people, papi people. So it's not that the Indian ethos do not include, I mean, any bad ethical principle. And it's not that the Europe does not have any good ethical principle. Truth, non-violence, they are there in every society, and their opposites are also there in every society. So maybe Europe was far more violent than India is, but that's a relative thing. Maybe Europe of that period was far more unjust than other societies, but that does not mean that no injustices were committed in India. See, what in a certain very fundamental sense, when one talks of a civilization, basically what one means is that exactly what are the domains and subdomains of various ethical principles. So what he perceived was that at the core of this renaissance, at the core of the modernity, what actually lies is that the domain of the self-interest and the domain of material things is so large that fundamentally in the long run this cannot be sustained. In a very briefly to explain what I'm trying to say is that, see, take the legal system, for instance. So suppose, let's say that judges are by and large motivated by law, by justice, by fairness considerations, then it is obviously by and large the society would be just. I mean, the justice would be delivered. But suppose by and large judges actually start delivering judgments on the basis of their self-interest. Then regardless of what the law says, regardless of the purpose for which the institutions of justice exist, regardless of these things, eventually there would be no justice in the society, or very little justice. So you see, his remarks about lawyers, doctors, etc., what they have to be understood in these terms, that what he's trying to say is that you look at the nature of these institutions, and what you would find is that they are designed in such a way the very purpose for which they are designed would not be served. And what is the reason? The reason is the obsession of the Europe with material things, bodily comforts.
This is the reason actually. So there is to explain his intriguing remarks about uh, West not ultimately being able to achieve what actually it is striving for. So you see, what happens is that in any society, if it has to function properly over a long run, the institutions must serve the basic purpose for which they are designed. But once the domain of self-interest, the domain that the purpose of life is actually to enjoy bodily comforts as much as possible, if the domain becomes too large, then institutions in the long run actually cannot serve the purposes for which they have been constructed, have been instituted. So what he's saying is that the value system of Europe, modernity, at its core is such that this value system in the long run is not sustainable. And if the value system is not sustainable, then obviously the institutions eventually would break down. So he's saying that a necessary condition for any society to be sustainable is that its value system actually has to be such that it's sustainable in the long run. So this 9 days wonder remark, or his remark that what is civilization? By civilization, what he is saying is that it is actually that structure of ethical principles in the society which is sustainable in the long run. Civilization is that tells us what our duty is. This is what he is saying. So his comparison between India and the West of modern times is that the Indians were there. The genius of India was that it was able to create a structure of ethical principles governing conduct of people, construction of institutions, how to function within those institutions, which means that our way of life was determined by a mix of ethical principles which was in the long run sustainable. So some of the speakers in today's earlier session and also this session remarked kind of crisis that we are having, ecological crisis because of COVID, this, that, etc. These are basically reflections that a value system was put in place because of which the institutions actually have evolved in a particular way. And that is the reason for one crisis after another crisis. So intuitively, Gandhiji actually had arrived at something very fundamental, that if you want sustainability in the society, then first you have to have a value system that is sustainable. Thank you very much. Of numbers in his life, and he reduces everything to a QED kind of. Thank you, speech. Very good. Madhu, you take your 3 minutes, and then we please come and take your 3 minutes. We should not waste those 3 minutes in this way. Just come. Friends, आपको मैंने पहले ही कॉल किया था कि मैं मेरी गांधी भक्ति से मुक्त हो चुकी हूँ, तो मैं किसी जमाने में कहा करती थी, ये बहुत दूर की बात नहीं। कुछ ही साल पहले तक I would rather die defeated with Gandhi than be victorious with Jinnah, ये मेरे शब्द थे। बहुत बार मैंने कहा लिखा भी, परंतु अब मुझे मालूम है मैं किसी गांधी के साथ मरने को तैयार नहीं हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि दोबारा कोई गांधी हमें और धिम्मी बनाने न आए, क्योंकि गांधी के रास्ते पे चल के मैंने भी अपने अगर कोई पॉलिटिकल ब्लंडर्स किए हैं
और मिसरीड की है इस देश की परिस्थिति, वो केवल गांधी बाबा की वजह से। ये जो अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, कश्मीरियों के साथ हमदर्दी दिखाना, मुस्लिम्स को विक्टिम समझना, हाय बेचारे माइनॉरिटी हैं और अगर हम इनको खुश नहीं रख सकते तो हमारी डेमोक्रेसी फेल है, मैंने वो सब जिंदगी की सही मायने में जिया। और ट्रूथ और नॉन वायलेंस, एक मच्छर मारने की भी मेरे में इच्छा शक्ति नहीं रह गई थी। पर मुझे लगता है गांधी ने अहिंसा का पाठ भी जो पढ़ाया बहुत इनकम्प्लीट पढ़ाया। अहिंसा परमो धर्म आधा है, धर्म की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, उससे भी आपका बड़ा धर्म है कि आप हिंसा कर सकें और अपने धर्म की रक्षा कर सकें। गांधी ने हमें बिल्कुल धिम्मी बना के रख दिया। दूसरी बात, मान लीजिए ये ना भी होता, गांधी को बहुत पहले लेफ्टिस्ट अपना चुके हैं, माओइस्ट अपना चुके हैं, इस्लामिस्ट अपना चुके हैं। ये मेरी खुद की देखी बात है, क्योंकि मुझे तो लेफ्टिस्ट ही लोग मानते थे, हालांकि मैं कभी अपने आप को मैं नहीं लेफ्टिस्ट मानी, पर या स्टूडेंट डेज में था। उसके बाद क्या कब उन्होंने राम मंदिर के बाद ये कम्युनिस्ट पार्टी ने फॉर्मल रेजोल्यूशन पार्टी की पास की अपनी सुप्रीम बॉडीज़ में कि बीजेपी और आरएसएस की ये जो हिंदू जागृति मुहिम है राम मंदिर के माध्यम से चली है, जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुई, कि अब हमें गांधी और भक्ति मूवमेंट को अपनाना है इसलिए नहीं कि उसको आत्मसात करना है। यू कैन सी इट इन देयर पार्टी डॉक्यूमेंट्स। मैंने इस पे तब भी लिखा था गार्डियन में, अखबार में आर्टिकल। हमें वी वांट टू यूज इट एज अ वेपन टू डिफीट and put down BJP and RSS and that whole Hindu upsurge that happened as a result of। उन्होंने अपना लिया और अपनाया। गांधी को कोई आत्मसात करने को मुसलमान तैयार नहीं, क्रिश्चियन तैयार नहीं, माओइस्ट तैयार नहीं, लेफ्टिस्ट तैयार नहीं। वो करते हैं ओनली टू ब्राउबीट हिंदूज। और जितना मर्जी आप बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, आज आप जो प्रयास कर रहे हैं कि गांधी को फिर से समझें, फिर क्या करें, उसका जितनी मर्जी आप डुगडुगी बचा लीजिए। बीजेपी, आरएसएस और आप सब जैसे लोगों के लिए उनके पास एक ही लेबल है, फासिस्ट। उन्होंने हिंदू और फासिस्ट को पर्यायवाची बना दिया है और आप कुछ नहीं कर पाए। वो धब्बा नहीं आप धो पाते। अब गांधी का आज, जबकि गांधी से हिंदू पक चुका है। अगर मैं कह रही हूँ मेरा खून आज खौलता है बहुत सी गांधी की बातों को लेकर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिन्होंने गांधी से पहले भी कभी प्यार नहीं किया, श्रद्धा नहीं रखी, उनका कितना खून खौलता होगा। आप अपना फासिस्ट धब्बा तो धोने की पहले प्रयास कीजिए, वो नहीं धो पा रहे आप। और आपके साथ जो बैठता है, 2014 से पहले किसी की हिम्मत नहीं थी मुझे पॉलिटिकल गाली या फासिस्ट या इस तरह के शब्द मेरे लिए इस्तेमाल करने की। क्या मैंने वो मोदी जी के बारे में लिख डाली किताब, आज तक भुगत रही हूँ। मेरे को आज तथाकथित सभ्य समाज में अपने साथ बैठाने के लिए लोग आज परहेज करते हैं। मेरे परिवार के लोग कहते हैं आप एक फासिस्ट पार्टी को क्यों सपोर्ट करती हैं। मेरे परिवार के यंगस्टर्स, ऐसी शिक्षा पद्धति उनको मिली जा रही है और कोई उसमें बदलाव नहीं लाया। वो टेक्स्ट बुक्स जिसमें आप सब लोग फासिस्ट हैं और आपके साथ जो खड़ा हो जाए उसको भी फासिस्ट और उससे भी भद्दे शब्द उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। आज हमारा जीना हराम है। I've never felt so endangered in India as I do after the coming of Modi। हम जैसे लोगों की कम से कम सुनवाई कम हो, इज्जत थी, आज वो इज्जत भी खत्म हो गई है। And I don't think I am in any mood to go back to the dhimmitude। मोदी जी को भी बहुत गांधी जी के साथ मोहब्बत प्रेम है, कोई उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान मूवमेंट की मातृभूमि है, आज भी भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के स्लोगन की
शुरुआत वहीं से होती है, सारी ट्रेनिंग ब्रेकअप इंडिया फोर्सेस की, सारा नैरेटिव वहाँ पे रचा जाता है। और किस तरह के मोदी जी जाके कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे आए एएमयू को, हमारा खून खौला। जैसे आज खून खौलता है गांधी जी खिलाफत के दौरान किस किस्म के हिमालयन ब्लंडर्स किए, किस किस्म का हिमालयन ब्लंडर था जब ये जो मैसेकर हुआ केरला में, क्या उसको बोलते हैं, मोपला मैसेकर हिंदुओं का। और गांधी जी का क्या रवैया था, मुसलमानों ने जो उनका मजहब है, दे वर फर्म टू देयर रिलीजन, मैसेकर किया, औरतों को नंगा करा, बेचा, मैस रेप्स किए, क्या क्या नहीं बर्बरता की। गांधी जी के मुंह में से एक आवाज नहीं निकली। जैसे आज मोदी जी के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। करीना बलोच का मर्डर होता है, वो उनको भाई कह कह के मिन्नतें करती रही, मोदी जी प्लीज कम टू आवर रेस्क्यू, हम बहुत तकलीफ में हैं। मोदी जी ने उस मर्डर को कंडेम नहीं किया, क्योंकि बहुत गांधीवादी बन गए हैं, बिल्कुल वही कर रहे हैं जो मोपला मैसेकर के दौरान गांधी जी ने किया या पार्टीशन के दौरान किया। और मैं इसमें दो राय नहीं है, बहुत चीज़ें हैं, 2 मिनट दे दो, अब बस तुमने एक तरफा राग बहुत अलाप लिया। और मैं सच में कह रही हूँ, आई वाज टेलिंग सुशील पंडित कि मैं तुम्हारे साथ आके बैठी नहीं होती तो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन आज तो हो जाना था। मैं सच में नहीं झेल पा रही हूँ, मैं सच में नहीं झेल पा रही हूँ इस बात को कि आज आप ऐसे माहौल में हमें फिर गांधीवादी बनाना चाहते हैं, जबकि देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, कई बातें हैं जो आज भी मैं गांधी जी की मानती हूँ और एक्ट करती हूँ, वो भी मैं बताऊंगी एंड में। बट ही वॉज द बिगेस्ट फेलियर, किसी चीज में वो सक्सीड नहीं किए। यहाँ तक कि सॉल्ट टैक्स भी ब्रिटिश के जाने के बाद ही, सॉल्ट टैक्स इतनी छोटी सी चीज़ थी, उसमें भी सक्सीड नहीं किए। खिलाफत के दौरान तो उन्होंने जो ब्लंडर्स किए और जो पैन इस्लामिज्म की बीमारी इस देश में लेके आ गए, और पार्टीशन की जिम्मेदारी गांधी जी के सर पे है। हमारे परिवारों के कितने लोग कत्लेआम जो हुए, करोड़ों लाखों उजड़े घरों से, और ये तब जबकि अंबेडकर जैसे लोग थे जो चेतावनी देते रहे कि या तो पार्टीशन स्वीकार मत करो, करना है तो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन करो। नो पार्टीशन ओवर माय डेड बॉडी। गांधी जी की डेड बॉडी तो हुई नहीं, परंतु लाखों की डेड बॉडीज के ऊपर पार्टीशन हुआ और गांधी जी ना रोक पाए। और उसके बाद रिटेलिएशन हुआ, जब वहाँ से ट्रेनें भर के आ रही थी तो गांधी जी यहाँ पे फास्ट करने बैठ जाते हैं, नहीं वापस आ। मेवात के लोग गए, उन इनवाइट करके बुलाया, नो नो यू हैव टू कम बैक। तो इतने ब्लंडर्स जिस आदमी ने किए हों और उसके ब्लंडर्स को हम आज भुगत रहे हैं। आज एक पाकिस्तान नहीं, इस देश में कई मिनी पाकिस्तान बन गए हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनमें पुलिस की हिम्मत नहीं है जाके किसी क्रिमिनल को अरेस्ट कर सके। और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह के नैरेटिव को सोशल मीडिया में अगर ना चलाया होता आम हिंदुओं ने, तो इस सरकार ने दबा देना था, उसको भी दबा देना था। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक एंड इज दिस, जो गांधी जी की रेलिवेंट बातें हैं, प्लीज स्वदेशी है ये सरकार तो बुलेट ट्रेन मानसिकता से चलती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अनाउंस हुई है, इट्स अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ डिटॉक्सिफाइंग आवर एजुकेशन। उसमें कोई स्वदेशी बात नहीं है। हमारी भाषाओं का मदर टंग, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा की प्रेमिसी हो, उसमें कोई नेशनल पॉलिसी में, एजुकेशन पॉलिसी में उसका कोई इंतज़ाम नहीं है। और जो स्वदेशी, आज बीजेपी आरएसएस के बच्चे भी, जो घरों के बच्चे मेरे पास आते हैं, सब एक्सपोर्ट क्वालिटी अपने बच्चे तो बनाना चाहते हैं, उन तो कोई स्वदेशी मुझे नहीं दिख रहा। हिंदी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, ये सब इनके प्रति आस्था होनी चाहिए, इनको सही में इनका दर्जा मिलना चाहिए, ऐसी भी कोई मुझे इंतज़ाम नहीं दिख रही। और ये नहीं कि सारे देश के स्तर पर आप बताइए, इतने लास्ट सेंटेंस, इतने साल
बीजेपी की सरकारें अलग अलग प्रदेशों में रही हैं, एक यूनिवर्सिटी जेएनयू के मुकाबले की आप खड़ी कर पाए जो काउंटर कर सके वो नैरेटिव? शिक्षा पॉलिसी बदलना तो बहुत दूर की बात है। तो कृपया करके गांधी को उनकी समाधि बना दी। हालांकि हम हिंदू कभी पूजते नहीं हैं मरण स्थल को, जन्म स्थल को की महत्व होती है। आपने बना दी कब्र वहाँ पे गांधी जी की, अब उनको वहीं रहने दीजिए। जितना जिसको आत्मसात करना है अपने जीवन में करे। अब गांधी की बखान करके और धीमी छूट इस देश में हमें स्वीकार नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद मधु। MC शर्मा है। महेश जी, आप महेश जी अनम्यूट कीजिए और महेश जी केवल 5 मिनट लीजिए। आज टाइम हमारे पास बहुत हमने शॉर्ट कर लिया है और मेरे चेन्नई के मित्र बोल नहीं पाए हैं, उनसे 2-2 मिनट बुलवाना। बजाज जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो बहुत कुछ कहना नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सुना, कल कुछ सुना, तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि हिंद स्वराज के विषय में और गांधी जी के विषय में कंफ्यूजन ज्यादा नहीं है, लेकिन सत्य को स्वीकारने की कुछ माने में हिम्मत बहुत लोगों में नहीं है। जब गांधी जी को हम हिंदू कहते हैं तो गांधी जी का संपूर्ण चरित्र हिंदू है, इसके बारे में किसी को संदेह नहीं है। लेकिन गांधी जी को हिंदू कहने में उनको तकलीफ है जिनका सेकुलरिज्म हिंदू नाम से डरता है। गांधी की प्रार्थना सभा हिंदू है, गांधी का रामराज्य हिंदू है, गांधी का संपूर्ण स्वराज्य हिंदू है। और वो जब हिंदू कहते हैं तो वह हिंदू सांस्कृतिक हिंदू है, जिसको अंग्रेजी में आजकल कहते हैं सिविलाइजेशनल। सिविलाइजेशनल को अनुवाद सभ्यता किया जाता है, पर सभ्यता से अधिक गहरा शब्द है संस्कृति और संस्कार। इसलिए हिंदू सांस्कृतिक रूप से हिंदू है, गांधी सांस्कृतिक रूप से हिंदू है। इसका अर्थ है कि सांस्कृतिक रूप से वो पाश्चात्य संस्कार और विचार को नकारते हैं। जिसको रिलीजन कहते हैं, रिलीजन के अर्थ में भारत में तो जिसको रिलीजन कहते हैं सबके अनुवाद ठीक से है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं। मुझे तो यह भी नहीं लगता कि संप्रदाय कोई रिलीजन का ठीक अनुवाद है। तो जब गांधी बात करते हैं तो वो धर्म की बात करते हैं, और जगह जगह दुनिया में धर्म का अनुवाद रिलीजन हो जाता है। भारतवर्ष में हिंदू शब्द के साथ एक जुड़ी हुई है विशेष प्रकार की राजनीति, जिसमें से उत्पन्न होता है हिंदू मुस्लिम द्वैत। जब गांधी को हम हिंदू पैट्रियट कहते हैं तब हम उस हिंदू मुस्लिम द्वैत को रेखांकित नहीं करते। गांधी को हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में हिंदू कौन मानता है, तो गांधी को हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में अंग्रेज हिंदू मानता है। जब गांधी को अंग्रेज हिंदू कहता है तब उसके मन में होता है कि वो गैर मुस्लिम है। और इसलिए मैं समझता हूं कि भारत की संस्कृति हिंदू संस्कृति है। भारत का राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है और भारत का देशभक्त हिंदू देशभक्त है। मुझे तो ठीक से मालूम नहीं है कि पैट्रियट शब्द का वास्तव में अनुवाद क्या होता है, क्योंकि देशभक्ति में भक्ति है, भक्ति तत्व तत्वतः आध्यात्मिक है।
और पैट्रियट में वो है क्या मुझे नहीं मालूम। इसलिए कोई भी देशभक्त होता है भारत का तो वह हिंदू ही होता है, उसका संप्रदाय रिलीजन कुछ भी हो। और मुझे लगता है कि इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म, इन द नेम ऑफ हिंदू मुस्लिम, इन द नेम ऑफ मॉडर्निटी कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हुई है। उन भ्रांतियों के कारण गांधी को हिंदू पैट्रियट कहने पर कुछ लोग चौंकते हैं। मैं समझता हूं गांधी से सहमति असहमति अलग चीज है। जो हिंदू कहते हैं वो सब गांधी से सहमत नहीं है। गांधी को जो चुनौती देता है वह अंबेडकर भी हिंदू है। गांधी से राजनीति में बहुत असहमत है वह सावरकर भी हिंदू है। और गांधी के खिलाफ कांग्रेस में बगावत करने वाले सुभाष चंद्र बोस भी हिंदू हैं। इसलिए हिंदुत्व और हिंदू ये एक कॉमन थ्रेड है जो भारत की सभी संस्कृति, भारत की सभी विचारधाराओं और भारत के सब महापुरुषों में अनुस्यूत है। और इस नाते से मैं समझता हूं हिंद स्वराज और गांधी जी के भीतर के जो इनहेरेंट हिंदुत्व है उसको रेखांकित करने का काम इस पुस्तक ने किया है। और इसलिए श्री एमडी श्रीनिवास और श्री बजाज जी यह बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि ये जो हिंदू को रेखांकित किया है इसकी व्यापक बहस क्योंकि पश्चिमी मुहावरे से हिंदू को समझना संभव नहीं है। पश्चिमी मुहावरे से क्या हिंदू रिलीजन है, मुझे लगता है ये सही नहीं होगा। पश्चिमी मुहावरे तो क्या हिंदू सिविलाइजेशन है, मैं कहना चाहूंगा हिंदू कल्चर है, हिंदू संस्कृति है। और ये समझने के लिए जिस व्यापक बहस की आवश्यकता है, मुझे लगता है यह पुस्तक उस बहस को आगे बढ़ाएगी। और समय की सीमा है, मुझे अधिक नहीं बोलना चाहिए। आपको पुनः पुनः धन्यवाद और बधाई कि आपने एक ऐसे विषय को रेखांकित किया जिसकी कि इस युग को जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार।